उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जहाँ पर भी होंगे कुछ नया और प्रोडक्टिव करने की कोशिश में लगे होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव स्किल एकेडमी, आ पाथ टू विक्ट्री पर। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं इस वीडियो का आगाज़, क्योंकि हमें सबको छूना है आकाश। आज की वीडियो में क्लास 9 NCERT चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3 को देखेंगे। इससे पहले की दो वीडियोस में मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2 को कवर कर चुका हूँ। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस ईच हैज़। हमें बताना है इन सब में किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है और इन सबको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 36/100, 36/100। ओके, तो when you're writing in the form of the decimal, there are 2 zeros in the denominator, then the point will be stuck after 2 numbers. It is 0.36. okay, it is fully terminated, so that this will be terminating decimal, terminating decimal. ओके, बिकॉज इसके आगे कुछ भी रिपीट्स नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/11। ओके, 1/11 व्हेन वी डिवाइड 1 by 11 we have to place a point here. okay, it is 0, then 0, then 9, यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा। इट इज़ 9s are 99 एंड दैट इज शो ऑन। जब मैं करूँगा इसको देन हमको मिलेगा 1/11 इक्वल्स टू 0.09, then again 09 and that is so on. So we can write this like 0.9 and bar on the 0.9 because 09 is repeating. okay, so when 0.09 is repeating, it means the type of expansion is non-terminating because it is not terminated. Non-terminating and recurring, बार बार अकर हो रहा है ये, that is why it is recurring. 09 is recurring, that is why it is non-terminating and recurring decimal. okay, the next question is 4 whole 1/8, and when going to write in the improper decimal, improper fraction, 8 4s are 32 plus 1 33/8. okay, and we divide 33 by 8, we will get 4.125, and this is terminating decimal. okay, I hope clear हुआ होगा। and move on the next question, that is 3/13. we have to divide 3 by 13. it is a long decimal. okay, when we divide 3 by 13 we will get 0.230769. इसके आगे भी हमको मिलेगा 2307 and that so on. it means the repeating part is 0.230769. it is continuously repeating, then we can put the bar on this. okay, then this type of expression is known as non-terminating and recurring because they all are recur. okay, then move on the next question, that is 2/11. okay, 2/11 when we are going to divide 2 by 11 we will get 0.181818 and that so on. so we can write it like 0.18 bar on this. again this is 0.18 bar on this. it is non-terminating and recurring decimal.
ओके, आई होप ये क्लियर हुआ आपको. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 329 डिवाइड बाई 400. क्वेश्चन नंबर 6. 329 divided by 400. Can we write like this 329 upon 400? I hope कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें. Then when we divide firstly 329 by 4, we will get 82.25, and we have to divide by 100 again, so we will get 329 divided by 400 equals to 0.8225, and this is terminating. I hope it will clear to you. Okay, jump to the next question, that is question number 2. You know 1 upon 7 equals to 0.142857 and bar on this. Can you predict what the decimal expansions of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7 dash are without actually doing the long division? If so, how? ठीक है, हमें बताना है कि 1 upon 7 इक्वल्स टू हमको इतना गिवन है. क्या हम विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन वी राइट द आंसर ऑफ दीज फॉलोइंग्स? Okay, we can write it is 2 upon 7. Then 1 upon 7 equals to 0.142857. We have to multiply by 2. Then we will get 0.285714 because the second remainder is 2. Okay, the next is 3 upon 7. Then we have to multiply it by 3. Then we will get 0.428571. एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूँ, आप लोग तो मल्टीप्लिकेशन करना जानते ही होंगे, आई होप. ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज 4 upon 7 equals to, विल गेट 0.571428 and bar on this. Okay, next again is 5 upon 7, we will get 0.714285 and bar on this. And then last one is, that is 6 upon 7, we will get 0.857142 and bar on this. Very simple. I hope clear हुआ होगा. Just move on to the next question, and next question is question number 3. That is very impressive question. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and Q does not equals to 0. अब ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कई बार आते हैं और आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है. सो मैं इस क्वेश्चंस को आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल्स मैनर में. 2 मेथड्स में आपको बताऊँगा. एक मेथड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. चलिए फर्स्ट मेथड को देखते हैं. ओके, लेट take x equals to 0. Bar on this. Then can we write like this 0.666 dash so on. Then we have to multiply here 10. Then we will get 6.6. Okay, any problem? Okay, this is equation 1 for us. This is equation 2. I hope कोई problem नहीं होगी. When we have to subtract 1 from 2, then we will get 10x minus x equals to 6.66 minus 0.666 dash on. We will get 6. Here we will get 9x. Then x equals to 6 upon 9. We will cut. It is 3 2 is 6, 3 3 is 9, and the answer is 2 upon 3. Then for this question, the answer is 2 upon 3. Okay, now I am going to tell you the very short method of this question. That is, if मेरी बात को ध्यान से सुनिए, the question is 0.6. हमको देखना है कितने नंबर से बार लगा हुआ है.
यहाँ पर एक नंबर पे बार लगा हुआ है, देन विल राइट सेम नंबर एंड जितने भी नंबर पे बार लगा हुआ है उतने ही डिनोमिनेटर में 9 को लिख देंगे, सिंपल। देन द आंसर इज 6/9 इक्वल्स टू 2/3, very easy. Okay, similarly we can like the next taking the second question, that is 0.47 bar on the 7. Okay, first of all doing the shortcut method. जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जितने पर बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 आ जाएंगे और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है वो अलग 0 आ जाएगा। तो हम लोग करते कैसे हैं, फुल नंबर में से जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे अपॉन जितने पर बार लगा हुआ है और जितने पर बार नहीं है उसका एक 0। ओके, देन 47 माइनस 4 इक्वल्स टू 43/90। देन द आंसर इज दैट इज वेरी सिंपल, है ना। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 0.001 बार ऑन द 3 नंबर्स। बताइए आप सब क्या होगा, कितने पर बार लगा हुआ है, 3 नंबर से बार लगा हुआ है, देन इट इज़ 1/999। ओके, दिस इज द वेरी सिंपल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, जस्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 dash in the form of the P upon Q. Are you surprised with your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer is makes sense. Okay. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए 0.999 so on, तो कैन बी राइट लाइक दिस 0.9 and bar on the 9. Okay, let's assume x equals to 0.9 and bar on this. Then we can write 0.999 and just so on. Just multiply in the equation number 1 by 10. Then we will get here the 10x and the 9.9 and bar. Again the same thing, we have to minus 1 from 2. 2 minus 1. 10x minus x equals to 9.9 बार माइनस 0.9 पर बार है, जब मैं माइनस करेंगे इसको, देन इट इज़ 9.9 माइनस बार ऑन द 9 विल गेट 9 and here 10x minus x, it is 9x and x equals to 9/9, actually 1. That is why the question is saying are you surprised, because it is 0.999 and answer is 1. So can we say that 0.9 bar on the 9 equals to 1. चलिए इसको हम शॉर्टकट मेथड से भी करते हैं, जो कि अभी आपको बताया था। 0 बार ऑन द 9, तो मैंने अभी आपको बताया जिस पर बार लगा हुआ है उसको लिखते हैं, जितने पर बार लगा हुआ है उतने 9 को नीचे ले दिया जाता है, केवल एक ही नंबर है तो 9 से 9 कट हो गया, आंसर इज 1। वेरी इजी मेथड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मीन्स क्वेश्चन इज सेइंग 1/17 को हमको डिवाइड करना है और हमको बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक कितने नंबर्स के बाद स्टार्ट होगा। ओके, तो वेरी लॉन्ग डिवीज़न मैंने इसके लिए आपको पहले ही करके रख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। दैट इज़ ओके, वी हैव टू डिवाइड 1 from 17. This long division method is going on. दिस डिवीज़न, ये डिवीज़न तो आपको अपने आप से ही करना होगा, वेरी लेंथी डिवीज़न। ओके, बचपन से आप ये सब करते हुए आ रहे हैं। तो हमको मिला है 1/17 इक्वल्स टू दिस, मीन्स इतने नंबर के बाद ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट होगा, 0.058823 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। तो
Answer is there are 16 digits. When we count these digits are 16 digits. इसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा. So हमें इस पूरे नंबर पर हम बार लगा सकते हैं. Okay, I hope this question is clear to you. Let's move on to the next question. And the next question is question number 6. Is saying, look at the several examples of the rational numbers in the form of p upon q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? हम किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हर बार सेटिस्फाई होगी. मीन्स हम ये जान पाएंगे कि कोई भी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपको पता चलेगा. लाइक वी आर राइटिंग सपोज 2/5. ओके, देन वी विल गेट 0.4. like any other number, right? We are going to write like 5/2. We will get 2/2.5. These are terminating decimals. Okay, ये repeat नहीं होंगे, इतना ही आएगा. तो the property is very simple. Means denominator जो होना चाहिए या तो वो 2 की फॉर्म में होगा, means 2 के मल्टीपल्स में होगा, और it can be in the multiple of the 5 or both like 2 की power n into 5 to the power m. Something else, it may be 1 2 3 4, n can be 1 2 dash dash so on, and m can be also 1 2 so on. Okay, the property is very simple. Just move to the next question. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. हमें ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं जिनके एक्सपेंशंस जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है. मीन्स वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं. तो हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, लाइक 0.31313313 डैश डैश, ये चलता चला जाएगा. लेकिन हम इसमें कहीं पर भी बार तो लगा नहीं सकते. हालांकि ये रिपीट हो रहा है, बट ये एक प्रॉपर मैनर में रिपीट नहीं हो रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. इट इज़ नॉन रिकरिंग. ओके, लाइक हमें लिखना है 3 नंबर्स. तो फर्स्ट नंबर हो गया. सेकेंड नंबर वी कैन राइट वॉट एवर 0.440440444000 वॉट एवर. ओके, एंड थर्ड नंबर वी कैन राइट 0.8839 88839 88839. आई होप क्लियर हुआ आपको. ये सारे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है. बिकॉज टर्मिनेट तो होंगे नहीं. टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. ये ख़त्म तो हो नहीं रहे. और रिकरिंग का मतलब होता है सेम डिजिट रिपीट होना. बट यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. आई होप क्लियर हुआ होगा आपको. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन find 3 irrational numbers between the rational numbers 5/7 9/11. मीन्स हमें 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता क्या हूँ, बहुत ही ईजी मेथड बताता हूँ आपको. 5/7 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ. वी आर गोइंग टू डिवाइड 5/7. विल गेट 0.714285. ओके, डिवाइड आप अपने आप से कीजिएगा. और जब मैं डिवाइड करता हूँ 9 को 11 से, विल गेट 0.81. तो मुझको करना है क्या है, हमको 3 नंबर साइड करने हैं. आप जितने चाहें उतने नंबर साइड कर सकते हैं. बस यहाँ पर ध्यान से देखिए 7181. देन ऐसे कोई 3 नंबर्स को लिखना है जो इन सब के बीच में लाई करते हैं. ओके, लाइक वी कैन राइट हेयर 0.7234 whatever, like 0.803945 dash dash, like 0.75
2, 8, 5 डैश सो ऑन, कोई भी नंबर लाई करना है, बट आपको देखना है कि यहाँ पर 8 1 से ज़्यादा ना हो और 7 1 से कम ना हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है हमको इनमें से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। रूट 23, क्या हम 23 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज 23 इज़ अ प्राइम नंबर, देन इट इज़ इरेशनल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ द 2 to 5। इट मीन्स वी कैन राइट 15 into 15 बिकॉज ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, इट इज़ 15 और 15/1 होता है, दैट इज मीन इट इज़ रेशनल नंबर। ओके, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ 0.3796, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मीन्स जब हम इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 zeros आ जाएंगे एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द P/Q, दैट इज़ इट इज़ रेशनल नंबर। Okay, just move on the next question, that is 7.478 and that is so on. We can write like this 7.478 and bar on the 47 because 478 repeating, it is non-terminating and recurring decimal, that is why it is a rational number because we can represent in the form of the P/Q। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कैसे रिप्रेजेंट करना है, उस मेथड से आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको केवल इतना बताना है कि रेशनल है या इरेशनल, दैट इट इज़ रेशनल। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन 1.010010001 एंड ये डैश डैश सो ऑन चलता चला जाएगा और ये नॉन रिकरिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो दूसरों तक शेयर करिए, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दिस वीडियो इज़ प्रोवाइडेड टू यू बाय कॉग्निटिव स्किल एकेडमी, अ पाथ टू विक्ट्री। जय हिंद।